Hi guys, so we'll be starting with lesson 11, the non-convertible redeemable preference shares. Now just if you all have a background, I'll just tell you the chapter in short. Basically non-convertible redeemable preference shares. So these are preference shares which are non-convertible. Okay, so they cannot be converted into equity shares and they are redeemable. In India, you can issue only redeemable preference shares that have to be redeemed within a certain fixed period. Now, under Companies Act, you have preference shares under section 55. Here, in this chapter, we'll be studying about listed companies, where listed company have to follow in addition to section 55 of the Companies Act, they also have to follow SEBI guidelines, which are given under SEBI issue and listing of non-convertible redeemable preference shares regulations 2013. So now let's begin. Okay, so the first thing is these are non-convertible, these are redeemable within a certain time period, and these are preference shares. एक एक करके पकड़ते हैं कि what is a share. Share क्या होता है कंपनी का? Share is a small part holding that you have of a company. So the definition is given under section 2 subsection 84. They say a share is a small share in the entire share capital of the company. So you have a small part ownership of the company, that is called as a share. Now you tell me shares कितने टाइप के हो सकते हैं? 1, 2, 3 कितने टाइप के shares होते हैं? Now, as per section 43 of Companies Act, there are only two kinds of shares that can be there. Two classes of shares. One is your equity shares and the second is your preference shares. Now, equity shares क्या होता है? These are shares which are not preference. Okay? And what are preference shares then? क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ preference shares are which are not equity? तो ऐसा गेम नहीं चालू है. इक्विटी के डेफिनेशन में एक्चुअली दिया है कि इक्विटी शेयर्स आर दोज व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस. तो दो में से अगर एक नहीं हुआ तो यही होगा. बट प्रेफरेंस में वो लोग बोल रहे हैं फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, प्रेफरेंस शेयर्स गेट अ प्रेफरेंस इन टू केसेस ओवर इक्विटी. तो वन एट द टाइम ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड सेकेंड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. तो अगर पहले पैसा बट रहा होगा तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को या इक्विटी को? सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे. क्लियर? देन इक्विटी कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू वोटिंग राइट्स और हैविंग डिफरेंशियल वोटिंग. वी आर कंसर्न टुडे विथ प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. जस्ट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट. प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज चैप्टर ये है, फ्रॉम the name you can make, they have a preference over equity in two cases. At the time of receiving the dividend, पहले preference को मिलेगा, फिर equity को मिलेगा. And at the time of repayment of capital, at the time of winding up, तो जब repay भी कर रहे पैसा तो पहले किसको मिलेगा? Preference shareholders को. अब तुम मुझे बोलो कि would you like to own preference shares or equity? Which is more beneficial? Preference ज़्यादा beneficial लग रहा है या equity? प्रेफरेंस. तो इसलिए महंगा भी कौन सा होगा? प्रेफरेंस. इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द कंपनी बेयर द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क. अब प्रेफरेंस शेयर्स अंडर कंपनीज एक्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 55. अब 55 सबसेक्शन 1 वो लोग क्या बोल रहे हैं? दैट कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते. मतलब कंपनीज सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज दिस रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिडीमेबल मींस रीपेएबल ऑन अ फिक्स्ड टेन्योर और ऑन अ सर्टेन डेट. सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, व्हेन द अमाउंट इज टू बी रिफंडेड at a fixed tenure during the life of the company is called as redeemable preference shares. What are irredeemable preference shares? Irredeemable preference shares which cannot be redeemed during the life of the company. एक वाइंडिंग अप के टाइम पे मिलेगा. तो ऐसे irredeemable preference shares कंपनी लॉ में इंडिया में इशू कर ही नहीं सकते हो. कैनॉट इशू irredeemable
प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब अगर इशू भी करना है रिडीमेबल, तो क्या मैं बोल सकता हूं मैं तुम्हें 30 साल बाद रीपे करूंगा, 40 साल बाद? नहीं, तो उसका भी टाइम लिमिट दिया है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे सो सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर रिडीम हो जाना चाहिए, रीपे हो जाना चाहिए। दैट टाइम लिमिट इज गिवन 20 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए तुम इशू कर सकते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 30 ईयर्स, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर लिटिल लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। अब इसके लिए अगर मुझे इशू करना है प्रेफरेंस शेयर, तो कौन सा रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा? कॉमन सेंस है, इट्स अ बिग मैटर, स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा और तुम्हें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सबको बताना पड़ेगा कि तुम प्रेफरेंस शेयर्स क्यों इशू कर रहे हो। एंड द लास्ट पार्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट अगर लिस्ट करना है तुमको, तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट करने हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जैसे इक्विटी शेयर्स भी लिस्ट होते हैं, हम लोग आईपीओ में खरीदते हैं, एफपीओ में खरीदते हैं, फिर उसकी ट्रेडिंग होती है। तो पहले वो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? लिस्ट होते हैं, लिस्टिंग होती है उसकी, और फिर बाद में उसकी ट्रेडिंग होती है। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स भी लिस्ट हो सकते हैं और फिर उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। उसके लिए तुम्हें सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। अभी कौन से है सेबी के गाइडलाइंस? नाउ सेबी approved the SEBI issue and listing of in non-convertible redeemable preference shares regulations 2013, okay, by a SEBI board meeting held on March 8, 2013 and it was notified on June 12, 2013। तो ये चैप्टर इस रेगुलेशन के बारे में है। क्या नाम है रेगुलेशन का? नॉन कन्वर्टेबल। अभी देखा हम लोग ने, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। कोई कोई प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कन्वर्टेबल होते हैं, जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड सर्टेन प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो अभी हम लोग देख रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशंस 2013। अब तुम ही सोचो, ऑल ऑफ यू ऑल आर इन प्रोफेशनल सीएस, अगर हम लोग इशू कर रहे कोई भी सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस, इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कोई भी चीज में इशू कर रहा हूं, तो क्या कंप्लायंसेस होते होंगे? कैन यू टेल मी? थोड़ा सोचो और मुझे बताओ। एज अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे इशू करना है ये सिक्योरिटीज, तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट थिंग इज, क्या तुम्हें कुछ भी कंपनी को नॉलेज होगा कैसे करना है? कि एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स कौन होंगे? मर्चेंट बैंकर्स, सेबी के ही इंटरमीडिएट्स होते हैं जो इशू प्रोसेस के अंदर हेल्प करेंगे। ये इंश्योर करते हैं मर्चेंट बैंकर्स दैट द एंटायर रेगुलेशन इज फॉलोड। ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स आएंगे, वो लोग बोलेंगे ठीक है हम संभाल लेंगे आपके इस इशू का। सेकंड दे विल से, एक आप इशू करने वाले हो प्रोस्पेक्टिस या ऑफर डॉक्यूमेंट, तो उसके अंदर सब ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर जो होगा वो पहले किसको देना पड़ेगा? इट हैज टू बी गिवन टू सेबी। सेबी अपने कमेंट्स करेंगे, फिर बाद में वो लेटर ऑफ ऑफर बनेगा, फिर सबको दे पाएंगे। थर्ड, लिस्टिंग होगी तो सब ऑनलाइन मैकेनिज्म होगा, तो डीमैटेरियलाइजेशन होगा, तो तुम्हें डिपॉजिटरीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने पड़ेंगे। अभी इशू है, कभी अंडर सब्सक्राइब ना हो जाए, इसके लिए किसको अपॉइंट कर सकते हैं? अंडर राइटर्स को तुम अपॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर इशू हो रहा है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इशू अच्छा है, वेदर इट इज गुड, हाउ रिस्की इट इज, कैसे पता चलेगा? एक और इंटरमीडियरी है जो गाइड करता है इन्वेस्टर्स इन देयर डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कैसे मूवीज होती है उसको रेटिंग देते हैं, वैसे ही इश्यूज को भी रेटिंग दी जाती है कि कितनी अच्छी रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, वैसे ही AAA, AA, B ऐसे अलग अलग टाइप के रेटिंग्स दी रहती है ऑन बेसिस ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, एक बार ये हो जाएगा, क्रेडिट रेटिंग हो गया, पैसा लेने का। अब पैसे के लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम 90% या कभी कभार वो लोग खुद से मेंशन करते क्या होगा, इतना अगर मैं इशू कर रहा हूँ, अगर सोचो मैं 1 करोड़ रेज कर रहा हूँ तो कम से कम 90 लाख सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं होगा तो मुझे रिडीम कर देना पड़ेगा। क्लियर है ना? एक बार देन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड देन ट्रेडिंग विल स्टार्ट। क्लियर है ना? ये बेसिक अपना इशू के बारे में है।
एंड नो डाउट अगर तुम लिस्ट करने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे यू आर गेटिंग लिस्टेड, तो जिसके घर में जा रहे हो उसको पूछना तो पड़ेगा. सो यू ऑल्सो हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग. वो लोगों को बताना पड़ेगा कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ पे लिस्ट होने को. क्लियर इतना? तो मोर और लेस दिस इज द प्रोविजन एंड दिस इज व्हाट यू कैन राइट. नाउ वी जस्ट गो थ्रू इट एंड फिनिश इट ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है फॉर इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सबसे पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, क्रेडिट रेटिंग निकालनी पड़ेगी और वही ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा. डीमटेरियलाइजेशन के लिए डिपॉजिटरीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो पाए. फिर मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करोगे, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को देगा, फिर वो इनकॉर्पोरेट करोगे चेंजेस एज गिवन बाय सेबी, दैट विल बिकम फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट. The next is you'll have to make various advertisements and notify the people. Minimum subscription receive हो जाना चाहिए, नहीं receive होगा तो पैसा refund. And these are your provisions. Now let's go from the module and finish it off. ठीक है? So firstly we've seen we are talking about non-convertible redeemable preference shares. अब दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. As we've seen, preference are a little more safer than equity shares. Section 47 of Companies Act states that voting जो भी होगा वो अपने होल्डिंग के हिसाब से होगा. अब अंबानी के ज़्यादा वोट्स होंगे क्योंकि उसके ज़्यादा शेयर्स हैं. सो एवरी मेंबर शैल हैव अ राइट टू वोट on every resolution placed before it. So every member shall have a right to vote on every resolution, and voting भी जो होगा it will be in the proportion to his share holding in the company. Now equity shareholders vote करते हैं. Preference shareholders कब vote कर सकते हैं? अगर 2 years तक consecutively उनके payment नहीं हुआ dividend का. So where the dividend in respect of any class of preference shares is not paid for 2 years or more, then the preference shareholders will also vote on every resolution placed before the meeting. Normally preference shareholders vote नहीं करते in equity shareholders की meeting, that is only equity shareholders vote. But अगर उनका dividend नहीं मिल रहा है 2 साल तक तो वो लोग फिर आके वो लोग भी वोट करेंगे. Not only 2 years, but अगर कभी कभार कोई भी डिसीजन अगर उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, like winding up, variation of rights, they can also come in and vote. Then इसमें वो बता रहे हैं that a corporate bonds and securitization advisory committee of SEBI was set up. They had recommended कि एक अलग से regulation बनना चाहिए for issue and listing of non-convertible redeemable preference shares. फिर बाद में SEBI ने approve किया ये regulations. Now let's see who can issue preference shares. Obviously all private, public and banks can issue these shares. अब banks जो होते हैं आजकल they are more into this kind of issue and they issue innovative securities. आजकल word क्या आ गया है? Innovative debt instruments भी issue करते हैं वो लोग. अब क्या होता है, पहले जो खाली डिवेंचर्स इशू होते थे, अब थोड़ा डिबेंचर्स विथ वारंट्स अटैच, डिबेंचर्स दीज बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जंग बॉन्ड्स, जैसे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट, मसाला बॉन्ड्स, अलग अलग टाइप के फैंसी डेट और प्रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट्स भी आने चालू हो गए हैं. नाउ ऑब्वियसली बैंक्स है तो ये जब भी इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रहे हैं विच आर नॉट प्लेन वेनिला डिबेंचर्स, थोड़े और इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तब उनको आरबीआई का कंसेंट लेना पड़ेगा और आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे. सो एज वी हैव सीन सेक्शन 43, क्या था 43? दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. सेक्शन 55 क्या था कि प्रेफरेंस शेयर्स का इशू अंडर कंपनीज एक्ट कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 55 के अंदर. ओके, नाउ these regulations are there 2013. Now when you are listed you also have to follow with SEBI LODR, which you might be knowing, and it is there in
in various other topics also. Now RBI guidelines also banks have to follow. Now coming to these guidelines, अभी यहाँ से चैप्टर चालू होता है. These regulations 2013 एप्लीकेबिलिटी कब होगा? अगर तुम पब्लिक इशू भी कर सकते हो, प्राइवेट इशू भी कर सकते हो, और उसका लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग भी हो सकता है. सो इफ अ लिस्टेड कंपनी वांट्स टू इशू दीज प्रेफरेंस शेयर्स, सो दे कैन मेक अ पब्लिक इशू ऑफ इट, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट और ऐसे इशू करके पैसे रेज कर सकते हैं, और दे कैन ऑल्सो मेक प्राइवेट प्लेसमेंट्स. यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट, यहाँ पे पब्लिक इशू, और उसके लिस्टिंग के बारे में भी लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग कैसे होगी. द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर देयर, यू कैन रीड इट अप. नाउ रिक्वायरमेंट्स. अब अगर हम लोग को इशू करना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे? सबसे पहले द प्रमोटर्स जो है, दे शुड नॉट बी रिस्ट्रेन्ड, दे शुड नॉट बी डिफॉल्टर्स. अदर काइंड ऑफ कंडीशंस आर गिवन दैट दे हैव टू टेक सेबी अप्रूवल, they have to take in principle approval of stock exchange to get listed. अभी जिसके घर पे जा रहे हो, जहाँ लिस्ट होने वाले, उनको तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि जो भी इशू हो रहे हैं वहाँ पे लिस्ट होने वाले हैं. क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी. डीमटेरियलाइजेशन, द मिनिमम टेन्योर ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर्स शैल नॉट बी लेस देन 3 years. ओके, और उसको रेटिंग भी अच्छी खासी मिलनी चाहिए, नॉट लेस देन AA- और इक्विवेलेंट. जब भी इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, नाउ दे विल हैव टू रिडीम. तो रिडीम एक टेन्योर पे होगा, वो डेट पे, वो उस दिन पे पैसे ना हो तो देने के लिए पैसे नहीं है. तो ऐसा दैट सिचुएशन शुड नॉट अकर. इट्स नॉट अ प्रूडेंट पॉलिसी. सो व्हाट दे डू इज दे मेक समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. कैपिटल रीपेमेंट का एक रिजर्व बनाएंगे जिधर से रीपे कर सकते हैं. The issuer shall not provide any loan for the acquisition of shares of any other person who is a part of the same group. So we should not issue these preference shares. So what they are saying, that the issuer shall not issue these preference shares so that one of their ग्रुप कंपनीज और दे आर एसोसिएट्स को टेक ओवर कर सकते हैं. एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ एनी ऑफ द पर्सन्स हु आर अंडर द सेम ग्रुप. द इशूअर शैल नॉट इशू दीज प्रेफरेंस शेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू और एक्विजिशन ऑफ एनी ऑफ द शेयर्स हु इज अ पार्ट ऑफ द सेम मैनेजमेंट ग्रुप. यू विल हैव टू अपॉइंट मर्चेंट बैंकर्स. मर्चेंट बैंकर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? दे मेक अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट. Due diligence certificate is basically that all the laws have been complied with respect to these regulations. सारे disclosures करने पड़ेंगे. You will have to file the offer document. पहले draft बनेगा, ये draft public को रखेंगे, websites के ऊपर display होगा for public comments. Then the lead merchant banker shall ensure that all the SEBI comments received by SEBI have been incorporated, and then in the end he will issue a due diligence certificate. Mode of disclosure shall be on the websites. There will be made various advertisements on English and daily newspapers. Now एक abridged prospectus होता है, इसको भी मार्क करो, important. तुमको पता है prospectus इतना मोटा बुक आती है, कभी तुमको लग रहा है कोई इन्वेस्टर पढ़ पाएगा ये? नहीं. तो salient features दिए जाने चाहिए ताकि 1 पेज में कि भाई मेन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है. So every application form is accompanied with this abridged prospectus. Abridged prospectus contains the main salient features, key highlights. So it becomes easier if someone doesn't want to read the entire prospectus, कम से कम वो एक पेज का पेज पढ़ लेंगे वो लोग. इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस, अब जो भी होगा वो सेबी के पोर्टल पे होगा, ऑनलाइन सिस्टम्स पे होगा. जो भी इफ कंपनी वांट्स दे कैन मेक अ इशू. जो सिक्योरिटीज होगी वो या तो फिक्स प्राइस पे हो सकता है या बुक बिल्डिंग पे होगा. अब बुक बिल्डिंग पे होगा तो लोग बिडिंग करेंगे, तो ये सब चीज एजबा प्रोसेस के थ्रू होगा. सपोज इफ यू हैव अप्लाइड फॉर दिस प्रेफरेंस शेयर्स, तो तुम जो भी अप्लाई करोगे उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा. सो इट इज एन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स. अब ये पूरा एजबा प्रोसेस कौन हैंडल करता है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स. मतलब क्या? आईपीओ में भी सेम होता है.
अगर सोचो मेरे को एक आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं कोई बैंक के पास में जाऊंगा, पार्टनर्ड बैंक जो उनके साथ में पार्टनर है, वहां पे जाके आईपीओ फॉर्म कलेक्ट करूंगा, डाल दूंगा, अपना प्राइस डाल दूंगा और फिर वहां पे सबमिट कर दूंगा। जैसे सबमिट कर दूंगा ना, मेरे अकाउंट में से वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। सो दिस इज एन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो ऑटो डेबिट हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस हैंडल्ड एज बा प्रोसेस का पूरा इट इज हैंडल्ड बाय सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स। प्राइस डिस्कवरी, प्राइस ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर्स could either be fixed or you can determine it through book building process. Redemption, you have to redeem as per the offer document. Minimum subscription should be received. That's very important because if you don't, you'll have to refund. Underwriting can be done. You'll have to, these underwriters should be registered with SEBI. No misstatement should be there and should not omit any material facts. Then this flowchart we have seen. Mandatory listing on any one of the recognized stock exchange. एक बार लिस्ट हो गए तुम्हें सेबी के साथ में लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा, विच इज योर सेबी LODR. अब ये था पब्लिक इशू के बारे में. अब दूसरा बात करें प्राइवेट इशू. सोचो प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, मैं एक लिस्टेड कंपनी हूं और मेरे को प्राइवेटली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ये प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, तो क्या होगा? मोर और लेस सेम. I'll have to comply with Companies Act. I have to get a credit rating. Dematerialized फॉर्म में होना चाहिए, डिस्क्लोजर्स करना चाहिए. मिनिमम एप्लीकेशन साइज शैल नॉट बी लेस देन 10 lakhs. कम से कम 10 लाख का इशू होना चाहिए उनको. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी टू इशू दी शेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू एनी पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इशू करूं ताकि किसी को लोन मिल जाए अपने ही ग्रुप का, तो इट इज रॉन्ग. इफ यू आर रिकग्नाइज्ड इन मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज देन यू हैव टू से विच इज द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज. मतलब अगर मैं NSE BSE पे हूँ, बी लिस्ट हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा मेन डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है. डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे. देन कम्स योर कंटिन्यूस लिस्टिंग. ऑल पब्लिक इश्यूज हैव टू comply with the continuous listing conditions, that is minimum 25% should be allotted to public. Traded, it can be traded on the stock exchange. The obligations of the issuer, क्या क्या obligations होगा? सारे facts सही होने चाहिए. मर्चेंट बैंकर को चेक करना पड़ेगा कि everything is true. क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा. एप्लीकेंट्स को सबको फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में ट्रीट करना पड़ेगा. मर्चेंट बैंकर हैज टू इशू अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट that everything has been done as per law. No person shall issue these shares to defraud any person. Now banks भी रहती है, it will be the provisions of chapter 6 of SEBI. Non-convertible redeemable preference shares will apply, may apply by banks. They have to follow RBI guidelines. Companies Act follow करना पड़ेगा 2013 and also have to make the necessary disclosures as stated by RBI. And that is it, and we are done with the chapter.